Israel-Iran war. Are we on the edge of World War III? I am not claiming anything, I am nobody to make that claim, but when a personality like Colombian President Gustavo says we are now in the prelude to World War III, it matters. Hello, you're watching ET Now. I am Ritu Sharma, and in this segment, we are going to discuss what is really happening between Iran and Israel. What are the underlying reasons? Its potential connections to World War III, and if ever war-like situation happens, how it will affect us as Indians. So firstly, what is going on right now? So late Saturday, Iran launched a direct attack on its Ark 4 Israel for the first time, firing more than 300 missiles and drones. Nearly all were intercepted by Israel and others, including United States, Jordan and Britain. Iran said its attack came in response to a deadly April 1st airstrike on Tehran's consulate building in Syria's capital Damascus that was widely blamed on Israel. On Sunday, United Nations Secretary General Antonio Guterres called for de-escalation at the UNSC and said the world could not afford another war in the Middle East. Now let's discuss how it unfolded. News came around Friday night, 12th April, that Hezbollah attacked northern Israel using drones and missiles. Hezbollah stated that it launched dozens of rockets at Israeli artillery locations in reaction to Israeli military strikes in southern Lebanon, marking one of its biggest attacks since the beginning of the Gaza war. Hezbollah is active around Lebanon and attacks Israel quite frequently. अब इन सब के बाद क्या हुआ, इस खबर के आते ही इसके पोटेंशियल इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिले। अमेरिका का जो इंडेक्स है, यूएस इंडेक्स, डाउ जोन्स और नेस्डैक, वो सभी लाल निशान के साथ बंद हुए जब मीडिया ने अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बिडेन से पूछा कि आप इस पूरे मसले पर ईरान को क्या सलाह देना चाहेंगे, तो उन्होंने रिप्लाई किया डोंट, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जो बिडेन के अगेंस्ट काफ़ी नेगेटिव रिस्पॉन्स भी देखने के लिए मिला। अब ये एक्सपेक्ट किया ही जा रहा था कि जो बिडेन की इस एडवाइस को ईरान नहीं मानेगा और 24 से 48 आवर्स के अंदर जो है एक बड़ा अटैक इजराइल पर किया जा सकता है। इस बीच ये भी खबरें आई कि ईरान ने करीब 100 क्रूज मिसाइल्स जो हैं वो तैयार करके रखी हैं ताकि वो इजराइल के ऊपर अटैक कर सकें, और ऐसा हुआ भी। इसके बाद ईरान ने हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स और ड्रोन्स को डायरेक्ट अटैक में इजराइल के ऊपर लॉन्च किया। इस बीच ईरान की मीडिया ने ये भी रिवील किया कि ईरान की तरफ से इजराइल के डिफेंस सिस्टम पर एक साइबर अटैक भी किया गया है ताकि उनके जो डिफेंस सिस्टम है वो ठीक तरह से काम ना कर सकें। After all this, Israel also confirmed attack by Iran, although Israel Defense Forces Rear Admiral Daniel Hagari said that 99% of the launches had been intercepted. Then Israel also thanked US and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu posted a short message on X. We intercepted, we blocked, together we will win. Israel Defense Minister Yoav Gallant also celebrated the results, thanking the US and other countries for their assistance. US President Joe Biden also confirmed helping Israel on Saturday by saying that US forces helped take down nearly all the drones and missiles fired by Iran at Israel, adding that he had reaffirmed his ironclad support to Prime Minister Benjamin Netanyahu. Biden added in a statement that he would convene his fellow leaders of the G7 group of wealthy nations on Sunday to coordinate a united diplomatic response to Iran's brazen attack. He also cleared that no US forces or facilities had come under attack from Iran. अब सवाल ये आता है कि ईरान ने इजराइल पर अटैक किया क्यों? ईरानियन मीडिया की माने तो इजराइल ने सीरिया के दमास्कस में एक ईरानी कंसुलर बिल्डिंग पर हमला किया था, जिसमें कई सीनियर कमांडर्स की और कुछ रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की भी जान गई थी, और ये हमला जो है वो ईरान की तरफ से यही बदला लेने के लिए किया गया है। इन सब के बाद हमास ने भी ईरान के इस हमले का सपोर्ट करते हुए कहा था कि ये एक वेल डिजर्व्ड रिस्पॉन्स है टू द अटैक इन सीरिया। अब समझते हैं कि इस पूरी कंडीशन में भारत का क्या रिस्पॉन्स था। So as reported by ANI, without specifically referring to any country, PM Modi in his speech said, "The cloud of uncertainty is hovering over the world today." He added, "There is a situation of war. The world is tense. In such times of crisis, the security of Indians living in these regions is our priority." अब इन सब की शुरुआत कैसे हुई? इन सब की शुरुआत हुई अक्टूबर 2023 में, जब हमास ने इजराइल के सिविलियंस पर अटैक किया और कई जानें इजराइल में गईं। इसके बाद इजराइल ने मिलिट्री ऑपरेशन को शुरू किया। अब इजराइल और ईरान के बीच जो भी कुछ हो रहा है, इसे वर्ल्ड वॉर 3 की एज क्यों कहा जा रहा है? ईरान ने जो पलटवार किया इजराइल के ऊपर, इसकी वजह से कहा गया कि ईरान के इस डिसीजन ने पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की एज पर ला करके खड़ा कर दिया है। क्यों? क्योंकि ईरान इज़ नॉट सो फार अवे फ्रॉम मेकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स। इजराइल ऑल्सो हैज़ सीक्रेट न्यूक्लियर वॉरहेड्स। तो अगर ये सिचुएशन जो है वो एस्केलेट होती है आगे जा कर के, तो हम सभी समझ सकते हैं कि कितनी बुरी सिचुएशन में दुनिया आ सकती है।
इस बीच ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कई बार ये क्लियर कर चुके हैं कि कोई भी कंट्री अगर उनको नुकसान पहुंचाएगी तो वो पलटवार करेंगे, यानी कि उसका जवाब जो है वो कड़े शब्दों में दिया जाएगा। अब इस सब पर ईरान का जो ऑफिशियल स्टांस है, अगर हम उसकी बात करें तो उनका कहना है कि यूएन के आर्टिकल 51 के तहत अगर कोई भी दूसरी कंट्री की एम्बेसी किसी और कंट्री पर हमला करती है तो उस कंट्री को पूरा हक है बदले में जवाब देने का। तो ऐसे में हर कंट्री यही बात कहेगी कि इस समय जो भी कुछ चल रहा है वो गलत चल रहा है, क्योंकि अगर ये सिचुएशन आगे एस्केलेट होती है तो सारी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ धकेल दी जाएगी। अब आपको बता दें कि अक्टूबर 2023 में जो हमास ने अटैक किया था उसको स्टॉक मार्केट से भी जोड़ा गया है। यूएसए बेस्ड रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने एक स्टडी पेश की थी, ट्रेडिंग ऑन टेरर जिसका नाम था, जिसमें ये बताया गया था कि हमास के जो बिजनेसमैन थे वो पहले से ही सिचुएशन को लेकर के अवेयर थे। तो जैसे ही अटैक किया गया मार्केट में पैनिकिंग हुई, शॉर्ट सेलिंग हुई और इसका फ़ायदा जो है वो हमास के बड़े बिजनेसमैन ने उठाया और अच्छा खासा मोटा अमाउंट जो है वो जुटाया था। अब अगर हम मार्केट की बात करें तो आज 15 अप्रैल के दिन तो क्रूड ऑयल में जंप नहीं देखा गया है, और अगर इसके पहले की सिचुएशंस की भी हम बात करें जहां पर रशिया यूक्रेन वॉर हो गया या इजराइल हमस वॉर हो गया, तो दोनों ही सिचुएशन ऐसी थी जिसमें मार्केट गिरा लेकिन उसके बाद दोबारा से अपने लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा है। तो मार्केट में अगर इसका इम्पैक्ट पड़ता भी है तो आपको एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका मिल जाएगा। अब बात रही इंडियन इकोनॉमी की, तो यहाँ पर जो सारा खेल है वो क्रूड ऑयल का ही है। अगर वॉर लाइक सिचुएशन होती है और क्रूड ऑयल जो है वो $100 पर पहुँचता है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी महंगाई बढ़ सकती है। इसके अलावा एक रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहाँ से भारत का ज़्यादातर जो कच्चा तेल है ज़रूरत का वो इम्पोर्ट किया जाता है। तो अगर वॉर लाइक सिचुएशन में इस रास्ते को कोई नुकसान पहुँचता है तो हो सकता है कि जो कच्चा तेल है वो और ज़्यादा महंगा हो जाए, और अगर ये महंगा होता है तो आप देख सकते हैं कि घूम के सारी चीज़ें जो हैं वो महंगाई पर ही आएंगी, जिसकी रूट जो है वो क्रूड ऑयल है। सो दैट्स ऑल इन दिस सेगमेंट। दिस इज ऋतु शर्मा साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड विद ET Now for more updates. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.